پاکستان کا مشکل وقت میں سعودی عرب کے لیے مکمل اظہار یکجہتی۔ سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلیفونک رابطہ۔ پاکستان ہمیشہ مملکت سعودی عرب اور برادر عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم کا فوری طور پر جنگ کے خاتمے اور علاقائی صورتحال مستحکم بنانے اور کشیدگی کم کرنے اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ہر سطح پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا ٹیلیفونک رابطہ۔ وزیر اعظم کا قطر اور دیگر برادر خلیجی ملکوں کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ۔ حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی امن کوششوں سے متعلق امیر قطر کو آگاہ کیا۔ امیر قطر نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطوں میں رہنے پر اتفاق۔ I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. I commend Prime Minister Shehbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at a moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries. پاکستان کی امریکہ ایران مذاکرات کی میزبانی کی بروقت اور تعمیری پیشکش۔ ملیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کا خیر مقدم۔ پاکستان بامانی مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی مضبوط پوزیشن رکھتا ہے۔ خطہ مسئلے کے پائیدار حل کا متقاضی ہے۔ امریکہ اور ایران اسی جذبے کے ساتھ جواب دیں جس کے تحت یہ پیشکش کی گئی۔ مذاکرات حقیقی نیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے چاہیے۔ کشیدگی کے خاتمے کے لیے تمام فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ویڈیو پیغام۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی پیشکش سے پاکستان خطے سمیت عالمی سیاست میں بھی توجہ کا مرکز۔ پاکستان کا ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ اعتماد کا رشتہ امن کے لیے کلیدی ہے۔ پاکستان کی ثالثی پر عالمی طاقتوں کا مہر تصدیق سب۔ چین کی جانب سے پاکستان کے اقدام کی بھرپور حمایت۔ خطے کے استحکام کے لیے ناگزیر قرار۔ روس کا بھی پاکستان کی ثالثی کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار۔ ایشیائی ملکوں کی جانب سے مثبت قدم قرار۔ پاکستان، ترکی اور مصر مل کر ایک سفارتی ٹرائیکا کے طور پر کام کر رہے ہیں تاکہ جنگ کے بادل چھٹ سکیں۔ سعودی عرب، ترکی اور ملیشیا نے بھی پاکستان کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وزیر اعظم نے خلیج کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کی عالمی امن کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کی جنگ کے تناظر میں پاکستان کو درپیش ممکنہ مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے وفاق کی پالیسی کی تعریف۔ باہمی دلچسپی کے سیاسی اور ملکی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبہ سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خلیجی ملکوں کو اشیاء خورونوش کی فراہمی کی حکمت عملی اور پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ متعلقہ محکموں اور افسران کی پذیرائی۔ خلیجی ریاستوں کو اشیاء خورونوش کی فراہمی اور پاکستانی بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز کا جائزہ۔ خلیجی ملکوں کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ ملکی غذائی ضروریات کو کسی صورت متاثر نہ ہونے دیا جائے۔ حکومتی اداروں کی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر قابل قبول نہیں۔ وزیر اعظم کی اشیاء خورونوش کی فراہمی اور غذائی تحفظ کے حوالے سے خلیجی ملکوں سے رابطے میں رہنے کی ہدایت۔ ایران نے مذاکرات سے متعلق امریکی تجاویز کو ناقابل قبول قرار دے دیا۔ امریکہ کے تجاویز غیر حقیقت پسندانہ اور زمینی حقائق سے متصادم ہیں۔ امریکہ کے مذاکرات کی پیشکش کشیدگی بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ قومی مفادات پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ جنگ اپنے وقت اور اپنی شرائط پر ہی ختم کریں گے۔ مطالبات پورے ہونے تک جنگ جاری رکھی جائے۔ ایرانی پریس ٹی وی۔ ایران مذاکرات کے حوالے سے اپنی شرائط سامنے لے آیا۔ ایران پر جارحیت فوری روکنے کا مطالبہ۔ جنگ دوبارہ مسلط نہ ہونے کی ٹھوس اور قابل عمل ضمانتیں دی جائیں۔ جنگ میں ہونے والے نقصانات کا ازالہ شرائط میں شامل۔ جنگ کا خاتمہ تمام محاذوں اور خطے بھر کے مزاحمتی گروپوں پر یکساں لاگو ہو۔ آبنائے ہرمز پر ایران کے خود مختار اختیار کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جائے۔
शराइत की मंजूरी से काबिल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान अपना हक के दिफा जारी रखेगा। ईरानी प्रेस टीवी। Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। इस पर हम दुरुस्त लोगों से बात कर रहे हैं जो मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान समझदारी का मुजाहिरा कर रहा है, एटमी हथियार ना बनाने पर आमादा है। मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और नायब सदर जेडी वेंस ईरान के मामले पर मुतहर्रिक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। चैलेंजेस से निमटने के लिए कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान क्यों मीडिएटर बना है आशुतोष? मैंने अभी 4-5 कारण बताए थे, आपने भी वो देखे होंगे। देखिए, ये हमको जो अपने पूर्वाग्रह पाकिस्तान को लेके उसको किनारे रखना चाहिए और ध्यान से देखना चाहिए। ये भूमिका दरअसल भारत को निभानी चाहिए थी। तो भारत अगर इस पूरे मामले में इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करता तो ये भूमिका भारत की होती और भारत की जो मीडिएशन होता वो ज्यादा क्रेडिबल होता। हमारे ऊपर क्या 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 दबाव था? हम क्यों चुप रह गए? Good luck to them. We all want peace. But India gets no credit if Pakistan is holding a peace talk. पाकिस्तान बना आलमी सियासत का नया मरकज। भारत की खारजा पॉलिसी वेंटिलेटर पर मुंतकिल। भारतीय मीडिया पर सफ़े मातम। मोदी का आइसोलेशन प्लान इस्लामाबाद की सफारतकारी तले दब गया। भारतीय तिल मिलाहट सिर्फ हसद नहीं बल्कि कई बरसों की मेहनत का ज़ाया होना है। भारत ने करोड़ों डॉलर खर्च करके दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान तन्हा हो चुका है, मगर पाकिस्तान ने पीस मेकर बनकर बाजी पलट दी। स्ट्रेटेजिक शिकस्त और भारतीय मीडिया की आसमान को छूती चीखें बता रही हैं कि नई दिल्ली के लिए इस्लामाबाद की सफारती फतह हासिल करना नामुमकिन हो गया है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका बहरी मश्क सी गार्डन में शिरकत के लिए PLA के जहाज की कराची आमद। पाक बहरिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। दोनों मुल्कों की मुश्तरका मश्क 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। मशकों का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माबैन ऑपरेशनल हम आहंगी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। मश्क के दौरान बंदरगाह और समंदर में मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। अमेरिका ईरान के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहा है तो उसका इत्तेहादी इसराइल ईरान पर मुसलसल हमले जारी रखे हुए है। खुद साख्ता आलमी सुपर पावर अपनी शिकस्त को मुआहिदा न कहे। ईरानी फौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी। इसराइल के अस्फ़हान में ईरान के ज़ेरे समंदर रिसर्च मरकज़ पर हमले। ईरान ने इसराइल के जौहरी तवानाई के मरकज़ डेमोना पर भी मिसाइल दाग दिए। बहरीन, कुवैत और उर्दन पर भी हमले। सऊदी अरब और कुवैत के ईरानी ड्रोन तबाह करने के दावे। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन टकराने के बाद आग भड़क उठी। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के वहशियाना हमलों में शहादतों की तादाद 1,500 जबकि जख्मियों की तादाद 18,500 से तजावुज कर गई। ईरानी हमलों में इसराइल और अमेरिका के 15 फौजी भी मारे जा चुके। जंग के दौरान इराक में 81 जबकि कुवैत और मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 अफराद जान की बाजी हार चुके। हमलों में सऊदी अरब और बहरीन में एक शहरी जान बहक हुआ। लबनान पर इजरायली जारहियत बदस्तूर जारी। जनूबी इलाके में 9, जनूबी सैदा में फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में 6 जबकि अदलोन कस्बे पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक। मैकम हमले में भी 2 जबकि हबूश कस्बे में 3 अफराद शहीद हुए। लबनान में इजरायली हमलों में अब तक 1072 अफराद शहीद जबकि 10 लाख से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। मोदी की ईरान के खिलाफ इसराइल नवाज पॉलिसियों के बायस आज पूरा भारत गैस और पेट्रोल के बहरान से दो चार। गरीब तबका दोबारा लकड़ी और कोयला जलाने पर मजबूर। एक वक्त के खाने के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। इंडियन अवाम की पेट्रोल के हुसूल के लिए तवील कतारें। फैशिस्ट मोदी की नाकिस पॉलिसियों से भारतीय अवाम रुल गए। खलीज टाइम्स।
मशरक़ वस्ता का तनाज़ा, भारत शदीद इक़्तिसादी बहरान का शिकार, भारत को माली दबाव का सामना, घरेलू मईशत मुतासर, महंगाई और खुराक व खाद की कीमतों में इजाफा, सरबराही इजलास का इनेकाद, भारत को महंगाई से निपटने के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा, गैर संजीदा सफारती और सियासी हिकमत अमली से माशी चैलेंजेस बढ़ेंगे, भारत किसान और बरामदकार तवील मुद्दती माशी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, प्रोफेसर जॉन मेयर। हुकूमत ने उनको कहा था कि नाइकॉप लें, अप्लाई करें, आके अपने बाप से मिलने, अपने बाप को मिलने के लिए नाइकॉप के जरिए इधर नहीं आ रहे, लेकिन वो बयानिया जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बना रहा है, जो रॉ का एजेंट है, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान की नफी कर रहा है, आप उसको साथ मिल रहे हैं। पीटीआई दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब किए गए, रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को सियासत करने का कोई हक नहीं, रियासत मुखालिफ एजेंडे को सख्ती से कुचला जाएगा। पीटीआई के बैरून मुल्क बैठे लोग डॉलर्स के लिए मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाते हैं। बानी पीटीआई के बेटे बाप से मिलने के बजाय पाकिस्तान के दुश्मन और रॉ के एजेंट आरिफ अजीकिया जैसे मुतनाज़ अफराद से मुलाकात कर रहे हैं। बानी पीटीआई के बेटे नाइकॉप पर पाकिस्तान आकर वालिद से मुलाकात कर सकते हैं, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर आबिद शेर अली की फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखता है। दुनिया में पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी क़यादत पर एतमाद किया जा रहा है। अमरीकी सदर फील्ड मार्शल से मुसलसल राबते कर रहे हैं। अवाम का हुकूमतों पर एतमाद बड़ी अहमियत का हामिल होता है। बाहर बैठकर यूट्यूबर्स मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम की सीनियर अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का सनती सार्फिन की सहूलत, बिजली के मौसर इस्तेमाल के लिए अहम कदम। पावर डिवीजन का सनती सार्फिन के लिए नया इख्तियारी मल्टी टैरिफ निज़ाम मुतारिफ कराने पर गौर। सनती सार्फिन को टाइम ऑफ यूज़ के तहत मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ निर्खों का इख्तियार मिलेगा। फिक्स चार्जेस ज़्यादा से ज़्यादा तलब की बुनियाद पर मुकर्रर होंगे। सनती सार्फिन को ऑफ पीक औकात में बिजली इस्तेमाल करने की तरगीब दी जाएगी। पावर डिवीजन। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, वजारत मजहबी उमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान से हज परवाज़ों का ऑपरेशन 18 अप्रैल से 21 मई तक जारी रहेगा। हज परवाज़ की मालूमात वजारत मजहबी उमूर की वेबसाइट पर भी दस्तयाब। आज़मीन हज पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी परवाज़ की मालूमात हासिल करें। मशरक़ वस्ता में बदलती सूरत हाल के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। ब्रेंट खाम तेल $101 फी बैरल, जबकि अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट $89 फी बैरल का हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। पाकिस्तान की जानिब से ख़वातीन हुर्रियत रहनुमाओं आसिया इंदराबी, फहमीदा सूफ़ी और नाहिदा नसरीन की गैर मुनसिफाना सज़ाओं की शदीद मजम्मत। फैसला कश्मीरी क़यादत और हक़ के खुदरादियत की आवाज़ दबाने की कोशिश करार। अदालती फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मनाफी और बुनियादी इंसानी हुकूक़ की मुसलसल पामाली की अक्कासी है। सज़ाओं से मुनसिफाना ट्रायल, अदालती खुद मुख्तारी, आलमी इंसानी हुकूक़ के तकाज़ों पर संगीन सवालात उठते हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। फैशिस्ट मोदी हुकूमत के दौर में इख्तलाफ राय और आज़ादी पसंदों की आवाज़ों को दबाने की मुहिम जारी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आसिया इंदराबी और उनके साथियों को तवील कैद की सजा सुनाने की मजम्मत। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी लिबरेशन फ्रंट की भारतीय अदलिया के फैसले की मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता कई बरस के दौरान सैकड़ों नाबालिग बच्चियां लापता हो चुकी हैं। मोदी हुकूमत का 2023 में 500 से ज़ायद नाबालिग लड़कियों के लापता होने का एतराफ़। दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती और इंसानी हुकूक की पामाली। अफगान तालिबान रजीम का सफाक चेहरा बेनकाब। इंतहा पसंदाना पॉलिसियों के सबब दुनिया भर के लिए नाकाबिल कबूल। जाबिराना कवानीन और अफगान शहरियों के बुनियादी हुकूक और मुस्तकबिल के लिए संगीन खतरा। शिद्दत पसंद और गैर जमहूरी पॉलिसियों के बायस अफगानिस्तान आलमी सतह पर तनहा इक्तसादी और इंसानी बहरान का शिकार है। माहिरीन
एनडीएमए का आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के जुनूब मगरबी हिस्सों से दाखिल होने वाला मगरबी हवाओं का सिलसिला शदीद मौसमी हालात के बायस बनेगा। तुरबत, केज, गवादर, खुजदार, योब और लसबेला, डियाई खान, बनू, पाड़ा चिनार, पेशावर, मर्दान और स्वाबी के अजला में सैलाब का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और चकवाल के नशेबी इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। PSL 11 का हर मोमेंट है वायरल होने वाला, 11 होने वाला। अरे स्मिथ भी तो है आने वाला, और मुल्तान का भी कमबैक है होने वाला। होने वाला वाला, होने वाला, होने वाला वाला, होने वाला वाला, होने वाला, होने वाला वाला, होने वाला। PSL 11 का हर मोमेंट है। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का मेला कल से सजेगा। 8 टीमें, 44 मुकाबले। लाहौर और कराची 22 मैचेस के मेजबान। किफायत शारी मुहिम के तहत स्टेडियम में मुकाबले शायकीन के बगैर। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबला शाम 7 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। Particularly Australians who get the opportunity to come to Pakistan, you know, we're so fortunate, we get looked after so well, and the PSL is becoming one of the best competitions for franchise cricketers in the world. PSL में शामिल कप्तानों की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान आकर अच्छा महसूस हुआ। हमारी टीम जबरदस्त क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल है। कप्तान मुल्तान सुल्तान्स, कोशिश है अच्छा खेल पेश करते हुए टूर्नामेंट दोबारा जीते। कप्तान लाहौर कलंदर्स शाहीन आफरीदी, स्टेडियम में शायकीन की कमी महसूस करेंगे। कप्तान पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम, हम एक मजबूत टीम बनकर खेलेंगे। कप्तान हैदराबाद किंग्समैन मार्स लबुशेन, एक अच्छे टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल पेश करेंगे। कप्तान रावलपिंडी मोहम्मद रिजवान, लाहौर और कराची की कंडीशन से वाकिफ होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। कप्तान कराची किंग्स डेविड वार्नर। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए खुसूसी उर्दू फीड चैनल का आगाज। शायकीन PTV स्पोर्ट्स पर कौमी जबान उर्दू में कमेंट्री और माहिराना तज्जियों के साथ क्रिकेट का भरपूर लुत्फ उठाएंगे। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, शोएब मलिक, सना मीर, सलमान बट, मरीना इकबाल, शाह फैसल और अयाज मोहम्मद शामिल। और PSL 11 के लिए टीमों की तैयारियां उरूज पर। तमाम 8 टीमों का प्रैक्टिस सेशन, क्रिकेटर्स की नेट प्रैक्टिस, फील्डिंग और कैचिंग पर भी भरपूर तवज्जो। बैटर्स चौकों और छक्कों के लिए पुरजोश, बॉलर्स विकेटें उड़ाने के लिए बेताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। प्यारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ایک اہم رابطے کے حوالے سے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی ہے۔ گرم جوش اور خوشگوار گفتگو کے دوران وزیر اعظم نے خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے عوام کو عید الفطر کی دلی مبارکباد پیش کی۔ سعودی ولی عہد نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے سعودی عرب پر حالیہ حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ کیا اور ایک بار پھر پاکستان کی مکمل یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ موجودہ بحران میں غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی عرب کی قیادت کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فوری طور پر جنگ کے خاتمے پر زور دیا تاکہ علاقائی صورتحال مستحکم کی جا سکے۔ انہوں نے امت کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی پر زور دیا جس کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو موجودہ حالات میں پاکستان کی تعمیری سفارتی کردار کے بارے میں آگاہ کیا جس میں کشیدگی کم کرنے اور اختلافات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان ہر سطح پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ٹیلی فونک گفتگو کے دوران قطر اور دیگر برادر خلیجی ملکوں پر حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار اور زخمیوں کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے مشکل وقت میں پاکستان کی جانب سے مکمل یکجہتی اور حمایت کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال کے تناظر میں قطر کے غیر معمولی تحمل کو سراہتے ہوئے پاکستان کے امن کے لیے سفارتی کوششوں سے امیر قطر کو آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان نے ہمیشہ بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے معاملات حل کرنے پر زور دیا ہے۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے علاقائی امن کے لیے پاکستان کی مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے قطر کے امیر اور عوام کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ قطر کے امیر کی جانب سے بھی عید کی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں خلیج کی صورتحال، پاکستان کی خارجی اور داخلی سیکیورٹی اور ممکنہ درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم نے خلیج کی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے عالمی امن کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششوں سے متعلق بلاول بھٹو زرداری کو بتایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے مشکل حالات میں پالیسی کی صحیح سمت متعین کرنے اور جنگ کے تناظر میں پاکستان کو درپیش ممکنہ مسائل سے نبردازمہ ہونے کے لیے وفاقی حکومت کی پالیسی کی تعریف کی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی حکومت کی جانب سے سندھ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ بھی لیا۔ امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی پذیرائی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے پاکستان کی جانب سے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی میزبانی کی بروقت اور تعمیری پیشکش کا خیر مقدم کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ویڈیو پیغام میں ملیشین وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بامانی مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی مضبوط پوزیشن رکھتا ہے۔ امریکہ اور ایران اسی جذبے کے ساتھ جواب دیں جس کے تحت ہی پیشکش کی گئی ہے۔ I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. I commend Prime Minister Shehbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at a moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries. Pakistan's relationship with the relevant parties and its standing as a credible voice in the Muslim world place it in a strong position to help create the conditions for meaningful negotiations. Malaysia supports this initiative. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خلیجی ممالک کو درکار شیخ ورنوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کے حوالے سے تمام متعلقہ محکموں کو خلیجی ممالک سے قریبی رابطے میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں خلیجی ریاستوں کو شیخ ورنوش کی فراہمی اور پاکستان کی بندرگاہوں اور میری ٹائم آپریشنز کے حوالے سے اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے خلیجی ممالک کو شیخ ورنوش کی فراہمی کے حوالے سے بنائی گئی حکمت عملی اور اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ محکموں اور افسران کی کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعظم
وزیراعظم نے کہا کہ موجودہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں خلیجی ممالک کی غذائی ضروریات کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ملکی غذائی ضروریات کو متاثر کیے بغیر ملک میں وافر مقدار میں موجود اشیاء خورنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے تیزی سے کام کیا جائے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ملکی غذائی ضروریات کے لیے اشیاء خورنوش کی طلب اور رسد کی مکمل نگرانی کی جائے۔ وزیراعظم نے واضح کیا کہ حکومتی اداروں کی سطح پر فیصلہ سازی میں کسی قسم کی تاخیر قابل قبول نہیں۔ تاخیر کے مرتکب افراد کی جواب دہی یقینی بنائی جائے گی۔ وزیراعظم نے کراچی، گوادر اور دیگر پاکستانی اہم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر فلائٹ آپریشنز میں اضافے کے لیے جامع لاہ عمل تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ خصوصی کمیٹی نے برآمدات کے حوالے سے 40 فوڈ آئٹمز کی منظوری دی ہے۔ سبزیوں، پھلوں اور گوشت کی برآمد کے حوالے سے کوئی اضافی ادائیگی نہیں کی جائے گی۔ برآمدات کے حوالے سے ہوائی اور بحری اوپن روٹس کو استعمال کیا جائے گا۔ کراچی اور بن قاسم بندرگاہیں عید الفطر کی چھٹیوں کے دوران بھی بھرپور فعال رہیں۔ آف ڈاک ٹرمینلز پر بھی ٹرانس شپمنٹ ہینڈلنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ بندرگاہوں پر نقل و حمل کے حوالے سے نرخ 60% تک کم کیے گئے ہیں۔ خام تیل لانے والے بحری جہازوں کو بندرگاہوں پر ترجیحی بنیادوں پر لنگر انداز کرایا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں رہنماؤں نے حالیہ علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا اور جاری چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کشیدگی میں کمی، بات چیت اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ عازمین حج کے لیے خوشخبری۔ وزارت مذہبی امور نے حج 2026 کے لیے پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ پاکستان سے حج پروازوں کا باقاعدہ آغاز 18 اپریل سے ہوگا اور حج آپریشن 21 مئی تک جاری رہے گا۔ عازمین حج اپنی پروازوں کی تفصیل پاک حج موبائل ایپ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ معلومات وزارت کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہیں۔ وزارت مذہبی امور نے عازمین کو ہدایت کی کہ وہ مزید معلومات اور تازہ اعلانات کے لیے پاک حج 2026 موبائل ایپ باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکہ کی 15 تجاویز مسترد کرتے ہوئے اپنی شرائط پیش کر دی ہیں۔ ہمارے نمائندے ارسلان اسد نے اپنی رپورٹ میں امریکہ ایران جنگ اور مذاکراتی محاذ پر ہونے والی پیش رفت کا احاطہ کیا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے حوالے سے مذاکراتی محاذ پر بظاہر غیر یقینی سی صورتحال ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایران نے امریکہ کی جانب سے جنگ ختم کرنے سے متعلق بھجوائی جانے والی 15 نکاتی تجاویز سے اتفاق نہ کرتے ہوئے اپنی 5 شرائط پیش کر دیں۔ ایران کے سرکاری پریس ٹی وی نے اعلیٰ ایرانی حکام کے حوالے سے بیان جاری کیا ہے کہ ایران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ جنگ ایران کی شرائط پر ختم ہوں گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران اپنی دفاعی کارروائیاں جاری رکھے گا اور دشمن کو بھاری ضربے لگاتا رہے گا جب تک اس کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ ان مطالبات میں ایران پر حملے مکمل بند کرنے، ایرانی قیادت کی ٹارگٹ کلنگ کا مکمل خاتمہ، ایران پر دوبارہ جنگ مسلط نہ کرنے کی گارنٹی اور جنگی نقصانات اور ہرجانے کی یقینی اور واضح ادائیگی شامل ہیں۔ اس سے پہلے 2 اہم عالمی خبر رساں اداروں ایسوسییٹڈ پریس اور رائٹرز نے ثالثی کرنے والے ملکوں کے حکام کے حوالے سے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کو جنگ بندی سے متعلق امریکی 15 نکاتی تجاویز موصول ہو گئی ہیں، جن میں اہم نکات کے تحت ایران کو ایٹمی ہتھیار پروگرام مکمل ترک کرنے سمیت میزائل پروگرام میں کمی کرنی ہوگی اور آبنائے ہرمز تک مکمل رسائی دینی ہوگی، جس کے عوض امریکہ ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے سمیت اس کی توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے سویلین جوہری تعاون کرے گا۔ ان خبروں کی تصدیق امریکی صدر نے بھی کی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری ہیں، اس بار ہم درست لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ Yeah, well, we're in negotiations as it turned out, and now you've seen what I said yesterday was exactly correct. We're in negotiations right now. They're doing it along with Marco, JD. We have a number of people doing it, and the other side, I can tell you, they'd like to make a deal. ایران کے مرکزی فوجی کمان کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے ایرانی میڈیا پر ویڈیو پیغام میں امریکہ کا نام لیے بغیر اسے خود ساختہ عالمی سپر پاور کے نام سے پکارتے ہوئے کہا کہ اپنی شکست کو معاہدہ نہ کہیں، آپ خود ہی اپنے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو دوسری جانب اس کا اتحادی اسرائیل ایران پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ تازہ حملوں میں اسرائیل نے ایران میں زیر سمندر ریسرچ مرکز پر حملوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اصفہان میں ایران کے ایک زیر سمندر ریسرچ مرکز پر منگل کو وسیع حملے کیے۔ اسرائیلی فوج کے دعوے کے مطابق یہ تحقیقی مرکز ایرانی بحریہ کے لیے آبدوز اور دیگر ہتھیار بناتا تھا، جس کے جواب میں پاسداران انقلاب نے اسرائیل، بحرین، کویت
और उर्दन की जानिब मिसाइल दागने का ऐलान किया, जिसके बाद सऊदी अरब और कुवैत ने अपने अपने मुल्कों में ईरानी ड्रोन तबाह करने के दावे किए। ताहम एक ड्रोन कुवैत के एयरपोर्ट से जा टकराया, जिसके बाद वहां आग भड़क उठी। ईरान ने इसराइल पर भी 5 मिसाइल दागे, जिनसे किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं। इसराइल ने लबनान पर अपनी जारियत बरकरार रखी हुई है। लबनान के जनूबी इलाके में इसराइली हमलों में कम से कम 9 अफराद शहीद हो गए। असलान असद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि दुश्मन के एजेंडे पर मुल्क से बाहर बैठकर एक टोला यूट्यूब पर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है। तफसील से आगाह करेंगे ज़िशान अली भट्टी। रावलपिंडी में पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम ने मेमरान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पुरअमन बकाए बहामी पर यकीन रखता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत को दुनिया तस्लीम कर रही है। दुनिया के अंदर अगर कोई एक मुल्क ऐसा नजर आया है जिसकी क़यादत जो है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और उसके ताल्लुकात अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी अच्छे हों, तो वो पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी एक ऑनर है। ये एक टीम वर्क है जो पॉलिटिको मिलिट्री लीडरशिप का, जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत को दुनिया मानती है। पीस के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर अजीज अहमद अवान ने कहा कि दुश्मन के एजेंडे पर बाहर बैठकर यूट्यूबर का टोला मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल के खिलाफ बोलना मुल्क के खिलाफ बोलने के मुतरादिफ है। जो शरपसंद है, जो दुश्मन के साथ मिले हुए हैं, जो पाकिस्तान की अफवाज को बदनाम करना चाहते हैं और जिनका एजेंडा पाकिस्तान को कमज़ोर करना है, वो इस वक्त भी आराम से नहीं बैठे और 4, 5, 6, 7 लोगों का जो एक शरपसंदों का टोला है जो मुल्क से बाहर बैठकर एक अरसे से मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है, वो उन्होंने इस मौके पर भी अपने मुल्क के साथ रियायत नहीं की। और आपने देखा कि इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही है। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेमरान का मजीद कहना था कि मुट्ठी भर अनासिर की कोई अहमियत नहीं है। मेमरान ने ईरान पर होने वाले हमलों की भी शदीद अल्फाज में मजम्मत की। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर आज़ादी पसंद तंजीमों ने सीनियर कश्मीरी खातून रहनुमा आसिया इंदराबी को उम्र कैद और उनकी 2 साथियों को तवील कैद की सज़ा की शदीद मजम्मत की है और इसे मोदी हुकूमत के दौर में इख्तलाफ राय और आज़ादी पसंदों की आवाज़ों को दबाने की जारी मुहिम का हिस्सा करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि फैसला कश्मीरी क़यादत को निशाना बनाने के लिए भारत की तरफ से अदलिया और तहकीकाती इदारों के गलत इस्तेमाल की अक्कासी करता है। आसिया इंदराबी और उनके साथी 9 साल से ज़ायद अरसे से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में नज़रबंद हैं, जबकि आसिया इंदराबी के शौहर डॉक्टर मोहम्मद कासिम फख्तो एक झूठे केस में 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से जेल की सलाखों के पीछे हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी और लिबरेशन फ्रंट ने भी भारतीय अदलिया के फैसले की मजम्मत करते हुए इसे सियासी इंतकाम और बैनुल-अक़वामी कानून और इंसाफ के बुनियादी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला एक बदउनवान अदालती निज़ाम की अक्कासी करता है जो मुनसिफाना ट्रायल के मयार और मुनासिब कानूनी अमल को नज़रअंदाज करता है। आसिया इंदराबी के बेटे ने सज़ा को सियासी क़यादत की ताहयात कैद को यकीनी बनाकर इख्तिलाफ राय को दबाने की कोशिश करार दिया। उधर मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी लोकसभा में एतराफ़ किया कि जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कई बरसों के दौरान सैकड़ों नाबालिग बच्चियाँ लापता हो चुकी हैं। सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि सिर्फ 2023 में 509 लड़कियाँ लापता हुईं, जो एक तशवीशनाक रुझान की निशानदही करता है। भारतीय मुतासिब अदलिया की जानिब से कश्मीरी खवातीन आसिया इंदराबी, नाहिदा नसरीन और सूफी फहमीदा को सज़ाओं के फैसले के खिलाफ मुजफ्फराबाद में पासवान हुर्रियत जम्मू कश्मीर शोबा खवातीन के ज़ेर एहतमाम बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अदिल अहमद खान की रिपोर्ट। आज़ादी पसंद कश्मीरी खातीन को दिल्ली की अदालत की जानब से सज़ाओं के फैसले के खिलाफ पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के खातीन विंग के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी ऐवान सहाफ़त मुजफ्फराबाद के सामने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। कश्मीरी खातीन की बड़ी तादाद ने भारतीय अदलिया और हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे में शिरकत की। खातीन ने भारतीय अदलिया के मुतासिबाना फैसलों के खिलाफ स्याह झंडे लहराकर एहतजाज किया। मुजाहरे में शरीक खातीन ने बैनर्स और पोस्टर्स थाम रखे थे जिन पर कश्मीरी खातीन की सज़ाओं के फैसलों के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन से खिताब के दौरान मुकर्रीन ने कहा कि बुज़दिल दुश्मन कश्मीरी खातीन से भी खाइफ है और इन पर भी जुल्म और जबर का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। मुकर्रीन ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म, इस्तिबदाद और इंसानियत सोज मजालिम हद से बढ़ रहे हैं। आलमी बरादरी खित्ते में अमन के क़याम के लिए मसला कश्मीर के हल के लिए संजीदा कोशिशें करे। ये आसिया इंदराबी साहिबा, फहमीदा सोफी साहिबा, नाहिदा नसरीन साहिबा के जो भारतीय जानबदार फैसला आया है उसके खिलाफ हम भरपूर मजम्मत करते हैं
اور آج ہم ان کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم ان بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مشکل گھڑی میں ہم ان کے ساتھ ہیں، تمام کشمیری خواتین ان کے ساتھ ہیں۔ ہم عالمی عدالت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ انہیں انصاف دلائے۔ مظاہرین نے شہر کی مرکزی شاہراہ پر مارچ بھی کیا اور بھارتی حکومت اور عدالتی نظام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین۔ این ڈی ایم اے نے اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ بلوچستان کے جنوب مغربی حصوں سے داخل ہونے والا مغربی ہواؤں کا سلسلہ شدید موسمی حالات کا باعث بنے گا۔ این ڈی ایم اے نے بتایا ہے کہ تربت، کیچ، کوادر، خزدار، یوب، لسبیلا، ڈی آئی خان، بنو، پاڑا چنار، پشاور، مردان اور سوابی کے اضلاع میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک اور چکوال کے نشیبی علاقوں میں بھی پانی جمع ہونے اور سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کا امکان موجود ہے، جس سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو سکتی ہے۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ تیز ہواؤں، آسمانی بجلی اور یالہ باری کے باعث کمزور تعمیرات، درختوں اور بجلی کے پولز کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بارش کی وجہ سے سڑکیں پھسلن کا شکار ہوں گی، لہٰذا مسافروں کو انتہائی احتیاط برتنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ این ڈی ایم اے نے عوام سے گزارش کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور گاڑی چلاتے وقت احتیاط برتیں۔ طوفان کے دوران درختوں، بجلی کے کھمبوں، سائن بورڈ سے دور رہیں۔ سیاح شمالی علاقوں کا رخ کرنے سے پہلے سڑکوں کی تازہ ترین صورتحال معلوم کریں۔ بروقت معلومات کے لیے این ڈی ایم اے کی آفیشیل ایپ پاک این ڈی ایم اے ڈیزاسٹر الرٹ ڈاؤن لوڈ کریں۔ این ڈی ایم اے نے تمام صوبائی اور ضلعی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سمیت متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ اور بلوچستان میں طویل سرما کے بعد بادام، خوبانی، چیری، امبر اور آڑو کے درختوں پر رنگ برنگے پھول نکل آئے ہیں، جس نے فضا کو ایک مسحور کن خوشبو سے معطر کر دیا ہے۔ سفید، گلابی اور زرد رنگ کے شگوفے جہاں قلات کی قدرتی خوبصورتی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں، وہیں یہ مقامی زمینداروں اور شہریوں کے لیے خوشحالی کی نوید بھی لائے ہیں۔ موسم کی اس تبدیلی اور دلکش مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد نے باغات کا رخ کر لیا ہے، جہاں وہ قدرت کے ان حسین نظاروں کے درمیان ذہنی سکون تلاش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پھلدار درختوں پر پھولوں کا وقت پر آنا بہترین فصل کی علامت ہوتا ہے۔ اور ناظرین، آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں۔ مٹھی میں 38، شہید بے نظیر آباد، چھور اور سکرن میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے دیگر علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد 30، لاہور 30، کراچی 34، پشاور 29، کوئٹہ میں 23، ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ گلگت میں 24، اسکردو 17، مظفر آباد 29، جبکہ سری نگر میں 20 ڈگری۔ آصف سے یورپی یونین کے پاکستان میں سفیر رامنڈاس کا روبلس نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان یورپی یونین کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور مختلف شعبہ جات میں اس تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پرعزم ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ موجودہ عالمی تناظر میں مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلسل رابطے ناگزیر ہیں۔ پاکستان اور چین کے بحری افواج کے درمیان مشق سی گارڈین 4 کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ مشقیں 25 مارچ سے 2 اپریل 2026 تک جاری رہیں گے، جس کا مقصد پیشہ ورانہ مہارتوں کا تبادلہ اور آپریشنل ہم آہنگی کا فروغ ہے۔ چینی لبریشن آرمی کا جہاز واشنگ کراچی کی بندرگاہ پہنچا تو پاک بحریہ کے اعلیٰ حکام نے استقبال کیا۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سی گارڈین مشقوں کا تسلسل پاک چین درینہ دفاعی تعلقات اور تصویرات شراکت داری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ مشقیں نہ صرف دونوں افواج کے مابین تعاون مضبوط کریں گی، بلکہ خطے میں ایک محفوظ اور مستحکم بحری ماحول یقینی بنانے کے لیے دونوں ممالک کے مشترکہ عزم کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور 100 انڈیکس میں 4347 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,58,313 پر بند ہوا۔ ضمیر عباس کی رپورٹ۔
अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें रंग ला रही हैं। कशीदगी के खात्मे में पाकिस्तान की सालिसी की पेशकश को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सराहा गया है। ये कोशिशें आलमी सतह पर पाकिस्तान की उभरती अहमियत को उजागर करती हैं। इन इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद मजबूत होता जा रहा है। यही वजह है कि आज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी रही और दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 4,610 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बेपनाह पोटेंशियल है, मार्केट टेक्निकली और फंडामेंटली काफी ज्यादा साउंड है, लेकिन जंग की वजह से जो सेंटीमेंट नेगेटिव साइड पे आते हैं, जिसके बाद दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स मंदी का शिकार हुई, तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी नीचे आ गई थी। जो ही मुज़ाकरात किस्से बढ़ने शुरू हुए हैं मामला, और हम देख रहे हैं कि जंग अपने इख्तितामी मराइल की तरफ बढ़ रही है, जिसमें पाकिस्तान का बहुत कलीदी किरदार है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इसको रिबाउंड किया, रिकवरी शो की है, और इसमें हमने खासतौर पर देखा कि ऑटो सेक्टर के अंदर सिक्लिकल स्टॉक्स में, बैंकिंग स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्रॉस द बोर्ड सरमायाकारों ने नई एंट्रीज ली है मार्केट के अंदर। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 567 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 363 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 77 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 127 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज बाजार हिस्स में 34 अरब 59 करोड़ रुपए की लागत के 3,74,000 सौदे हुए, जिसमें 61 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, पावर जनरेशन और टेक्नोलॉजी की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखी गई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को 27 अरब रुपए की पहली किस्त फराहम कर दी गई, जो वज़ीर-ए-आज़म के किफ़ायतशारी फंड से जारी की गई है। ये रकम हुकूमत के इस फैसले के तहत पैदा होने वाली कीमतों के फ़र्क के दावों की अदायगी के लिए की गई है, जिसका मकसद आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों के साथ से सार्फिन को बचाना है। ये फंड्स वफाकी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अखराजात में कमी के इक़दाम के जरिए जमा किए गए और वज़ीर-ए-आज़म के कफ़ालतशारी फंड्स में मुंतकिल किए गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा है कि पाकिस्तान की सफारती महाज पर अहम कामयाबियों के बाद दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, लेकिन पीटीआई रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की तफसील हाफिज आबिद अली से। सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि हुकूमती बर वक्त और मौसर इक़दामात की बदौलत पाकिस्तान दुरुस्त सिमत पर गामजन है, लेकिन पीटीआई के बैरून ममालिक बैठे लोग डॉलर्स के लिए मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाने में मसरूफ हैं। उनका कहना था कि सियासी कुव्वतों के साथ सियासी अंदाज में निपटा जाता है, जबकि रियासत मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम के लिए रियासती इदारे ही एक्शन लेते हैं। किस मुंह से ये बात करते हैं, ये इनके यूट्यूबर्स देख लें, इनके सो कॉल्ड जो लीडरशिप है वो देख लें, वो जो जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ डॉलर्स बनाने के लिए। चंद दिन के सो कॉल्ड जो सेल्फ एग्जाइल्ड लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ भी बयानियां बना रहे हैं। यार, हम सियासी दुश्मन का तो मुकाबला सियासत से कर सकते हैं, अब रियासती दुश्मन का मुकाबला तो फिर जिस तरह रियासत अपने दुश्मनों से करती है तो फिर उसी तरह होगा ना जी। आबिद शेर अली ने कहा कि बानी पीटीआई के बेटे एक तरफ अपने बाप से मिलने के ख्वाह हैं और दूसरी तरफ रियासत मुखालिफ अनासिर के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ हैं। हुकूमत ने उनको कहा था कि नाइकॉप ले, अप्लाई करें, आके अपने बाप से मिलने, अपने बाप को मिलने के लिए नाइकॉप के जरिए इधर नहीं आ रहे, लेकिन वो बयानियां जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बना रहा है, जो रॉ का एजेंट है, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान की नफी कर रहा है, आप उसको साथ मिल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में सेनेटर आबिद शेर अली ने कहा कि पीटीआई के दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब किए गए, ताहम मौजूदा हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान को दुनिया में नुमाया मकाम मिला है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। तवानाई के वफाकी वज़ीर अवैस अहमद लगारी ने कहा है कि मकामी सतह पर तैयार करदा कंडक्टर्स के इस्तेमाल से न सिर्फ दरामदात में कमी आई है बल्कि कौमी ख़जाने को तकरीबन 40% तक की बचत भी हासिल हुई है। स्टील, केबल और कंडक्टर साजी के शोबों में मुल्क अब खुद किफ़ालत की जानिब गामजन है। अवैस लगारी ने कहा कि मकामी मैनुफैक्चरर्स को बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मुश्तरका मनसूबों और ज़ैली इदारों के क़याम के ज़रिए आलमी मयार के मुताबिक ढाला जा रहा है। मकामी कंपनियों के हौसला अफजाई के लिए 900 मिलियन रुपये मालियत के 9 एजुकेशनल ऑर्डर्स जारी किए गए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मकामी पैदावार के फ़रोग से जहाँ ज़र मुबादला के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हुआ, वहाँ तामीराती मवाद की बरवक्त फराहमी से बिजली के मनसूबों की तकमील में हायल रुकावटें भी दूर हुईं।
बहरी उमूर के वफाकी वज़ीर मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी कहते हैं कराची पोर्ट पर ट्रांसशिपमेंट जहाज़ों के लिए माली मरात मुतारिफ करवा दी गई हैं और खुश्क बल्क कार्गो पर पोर्ट चार्जेस में 60% तक रियायत दी गई है। गैर मुल्की कार्गो के ट्रांसशिपमेंट बढ़ाने की हिकमत अमली के जायज़ा इजलास में वफाकी वज़ीर ने मुसाबकती बंदरगाही निज़ाम के जरिए तजारती मौक़े बढ़ाने पर जोर दिया। इजलास को बताया गया कि ईद के दौरान भी बंदरगाही ऑपरेशन बिला ताअत्तुल जारी रहा और 15,000 कंटेनर्स और 22 जहाज़ हैंडल किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया गया। स्पेन में पाकिस्तानी सफ़ीर ज़हूर अहमद और काउंसिल जनरल बार्सिलोना ने ब्रीफिंग में बताया कि तमाम इदारे पाकिस्तानियों को ज़रूरी दस्तावेज़ात की बरवक्त दस्तयाबी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट तरजीही बुनियादों पर जारी किए जा रहे हैं। किसी भी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी न किया जाए। वज़ीर दाखिला ने सफारत खाने को पासपोर्ट सेक्शन के लिए इजाफी अमला फराहम करने की हिदायत कर दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि सूबे में पासपोर्ट खिदमात शिमाली और जनूबी 2 जोन्स के तहत फराहम की जा रही हैं, जबकि DI खान समेत 5 रीजनल दफातर और मजमूई तौर पर 39 पासपोर्ट दफातर काम कर रहे हैं। गवर्नर ने रीजनल पासपोर्ट दफातर की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि बैरून मुल्क मुकीम अफराद और उमरा ज़ियारत के लिए जाने वाले शहरियों की सहूलत के लिए पासपोर्ट खिदमात मज़ीद आसान बनाना ज़रूरी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को पेशावर में रेडियो पाकिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पेशावर की नई इमारत से रोजाना 16 घंटे पर मुश्तमिल हालात हाजरा, सियासी, समाजी और सकाफती प्रोग्राम्स नशर किए जा रहे हैं, जिन्हें सूबे के दूर दराज इलाकों समेत अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में भी सुना जा सकता है। रेडियो पाकिस्तान पेशावर से उर्दू, पश्तो, हिंदको, खवार और गोजरी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में नशरियात पेश की जा रही हैं जो खित्ते के सकाफती और लसानी तनव्वुर की अक्कासी करती हैं। गवर्नर को 9 मई के वाक़े में इमारत को पहुंचने वाले नुकसानात और इसके बाद बहाली के अमल से भी आगाह किया गया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कौमी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल से मुख्तलिफ वफूद ने मुलाकातें की। बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एडवोकेट अताउल्लाह लांगू की क़यादत में वकला बरादरी से बातचीत करते हुए गवर्नर ने कहा कि वकला हमारे माशरे के गरीब और लाचार अफराद के लिए सस्ता और बरवक्त इंसाफ यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि कानून की पासदारी में सबसे अहम किरदार वकला का है। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने बीजिंग में बेल्ट एंड रोड एम्बेसडर स्कॉलरशिप अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत की। उन्होंने ओवरसीज़ चाइनीज़ चैरिटी फाउंडेशन की जानिब से इस प्रोग्राम के अजर को सराहते हुए कहा कि ये इक़दाम तलबा को आला तालीम, आलमी तजुर्बे और महारतें हासिल करने के मौक़े फराहम करता है। ख़ुसूसी तौर पर स्कॉलरशिप हासिल करने वाले पाकिस्तानी तलबा खालिद अतिया, असद मोहम्मद, कैसर इरफान, जमील मोहम्मद फवाद और रिसालत आमना को खिराज तहसीन पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। चेयरमैन कायमा कमेटी इत्तलात और नशरियात फलैन बलूच और रुकन सूबाई असम्बली मीर रहमत सौले बलूच ने म्यूनसिपल कमेटी तसब में नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में फलैन बलूच ने कहा कि पंजगोर, चीदगी बॉर्डर और रोड की मंजूरी हो चुकी है, जबकि गुचक आवाराना रोड पर काम जारी है, जिससे सफरी सहूलियात और रोजगार के मौके पड़ेंगे। तिजारत के वफाकी वजीर जाम कमाल कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शाहिर रहमान के घर गए और उनसे उनकी बेटी मारवी खुर्शीद मलिक के इंतकाल पर ताज़ियत की। जाम कमाल ने मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस्लामाबाद में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान मुल्क में खाद की सूरत हाल, तलब और रसद और मुस्तक़बिल की हिकमत अमली का तफसीली जायज़ा लिया गया। वफाकी वज़ीर ने रबी के दौरान मुल्क में यूरिया और DAP के वाफ़र दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया और बताया कि आने वाली फसल खरीफ की फसल भी खाद की मुनासिब मिक़दार मौजूद है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि आलमी मंडी के उतार चढ़ाव के बावजूद हुकूमत मकामी सतह पर खाद की दस्तयाबी यकीनी बना रही है और यूरिया और DAP की तलब और रसद में बेहतरीन तवाज़ुन बरकरार है। इजलास में खाद की तरसील और तकसीम का निज़ाम मौसर बनाने के आज़म का इयादा करते हुए मुतल्लिका इदारों को हिदायत की गई कि खाद की तकसीम में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वफाकी वज़ीर शहज़ा फातिमा के दरमियान कोयटा में मुलाकात के दौरान नेशनल डिजिटल पॉलिसी की तश्कील और इस पर अमल दरामद पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान हुकूमत ने महकमा ख़जाना की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन के ज़रिए इस्लाहात का आगाज़ कर दिया है, जिससे करप्शन के तमाम रास्ते बंद होंगे और AI के ज़रिए मेरिट पर नौजवानों की तकर्री मुमकिन होगी। उन्होंने सोशल मीडिया के मुस्बत असरात के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से सेहत की सहूलियात कम होती जा रही हैं। कराची में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समिट से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में सेहत की बुनियादी सहूलियात की कमी है, यहाँ बढ़ती हुई आबादी पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पोलियो वायरस अब भी बड़ा चैलेंज है, लोग सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं ताकि बीमारियों से महफूज रह सकें। PSL 11 का हर मोमेंट है वायरल होने वाला, 11 होने वाला। अरे स्मिथ भी तो है आने वाला, और मुल्तान का भी कमबैक है होने वाला। 11 होने वाला वाला, 11 होने वाला, 11 होने वाला वाला, 11 होने वाला वाला, 11 होने वाला, 11 होने वाला वाला, 11 होने वाला। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का मेला कल से सजेगा। इवेंट में पहली बार 8 टीमों के दरमियान 44 मुकाबले होंगे। लाहौर और कराची 22 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। तफसील बता रहे हैं मुअज़्ज़मुद्दीन। क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार। अब बारी है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की। मेगा इवेंट का पहला मैच दफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के तमाम मैचेस लाहौर और कराची में खेले जाएंगे, जबकि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के ऐलान के मुताबिक कफायत शारी मुहिम के तहत मैचेस का इनाकाद शायकीन के बगैर होगा। लाहौर में टूर्नामेंट से कबल तमाम टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोशिश है कि इस टूर्नामेंट को पहले से ज्यादा कामयाब बनाया जाए। मैदान में शायकीन की कमी शिद्दत से महसूस करेंगे। The PSL is becoming one of the best competitions for franchise cricketers in the world, and हमारे लिए भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है कि क्राउड नहीं आ रहा, और उस चीज़ को हम भी मिस करेंगे, लोग भी मिस कर रहे हैं। It's an exciting new chapter for the Kingsmen to come into a new franchise and be a part of this part of the PSL for this season. It's obviously good to have those guys part of our group, and for us it's about trying to emulate a little bit of what we did last year and how we can improve from how we started last year as well. We had 5 home games, and obviously we're down to 2 venues here, so there's no excuse that we can't get used to the venues, and we can adapt as fast as we can. हमने कैंप लगाया हुआ था इस्लामाबाद में हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, तो जो लोकल प्लेयर थे उन्होंने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की, और हमारी कोशिश होगी कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें और मुकाबले अच्छे हों। PSL सीजन 11 में कुल 44 मैचेस खेले जाएंगे, और इवेंट में पहली मर्तबा 8 टीमें शामिल हैं। लाहौर और कराची 22 मैचेस की मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मुअज़्ज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और शायकीन क्रिकेट के लिए एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के लिए खुसूसी उर्दू फीड चैनल का आगाज़ कर दिया गया। क्रिकेट के शायकीन PTV स्पोर्ट्स HD पर कौमी ज़ुबान उर्दू में मैच कमेंट्री और माहिराना तज्ज़ियों के साथ क्रिकेट का भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे। उर्दू कमेंट्री पैनल में तारिक सईद, शोएब मलिक, सना मीर, सलमान बट, मरीना इकबाल, शाह फैसल और अयाज मोहम्मद शामिल हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए टीमों की तैयारियां उरूज पर हैं। तमाम 8 फ्रेंचाइजीज के खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग सेशंस पर भरपूर तवज्जो दी है। क्रिकेटर्स नेट प्रैक्टिस के साथ फील्डिंग और कैचिंग पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। बैटर्स चौकों और छक्कों से घरों में बैठे शायकीन का दिल लुभाने के लिए तैयार, जबकि बॉलर्स भी विकेटें उड़ाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल क्रिकेटर्स का खुसूसी फोटो शूट हुआ। तमाम टीमों और स्टार क्रिकेटर्स ने मीडिया के लिए खुसूसी फोटो शूट किया, जिसे शायकीन की जानिब से बेहद सराहा गया। खिलाड़ियों ने अपनी टीमों की किट्स में खुसूसी पोज दिए, जिसने PSL का जोश व खरोश मजीद बढ़ा दिया है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।